Praise the Lord, highest praise church family. Once again, a warm welcome to each one of you for our Thursday evening devotions. Last few weeks, our dear associate pastors were speaking to us with different contexts and different topics, and we want to thank God for all the word that we received, and I hope that we were all blessed by those devotions. So today, I am back with our devotion, and I hope that today the little word that God has put into my heart, जो परमेश्वर ने मेरे मन में जो एक वचन दिया हुआ है, उस वचन आपके सामने रखो और ये वचन आपके लिए और हमारे लिए आशीष का कारण बनेंगे. Hallelujah. I hope that all of you are doing well और सबों का health is good and God's protection is over all our dear people. Hallelujah. मैं परमेश्वर को धन्यवाद देते कि हमारे कलीसिया के सभी लोगों पर परमेश्वर की कृपा है and definitely God's protection हम हर एक के ऊपर अभी तक है. Hallelujah. आइए हमारे बाइबल्स को निकालेंगे. आज जो विषय मेरे मन में परमेश्वर ने दिया वो है, इंग्लिश में we call it idolatry. ये मेरा लास्ट संडे का सरमन का थोड़ा what do you say, there is a part of my sermon but I could not finish it last Sunday because time constraints, so I thought I'll take it in a devotion. Idolatry, ये जो हिंदी में उसे कहता है मूर्ति पूजा या फिर मूर्ति के बारे में. Whenever we speak about idolatry, we feel we are not involved in it, isn't it? हमें लगता है कि हमारी जिंदगी में कोई idolatry नहीं है, we don't worship any idols, या फिर हम कोई मूर्ति का पूजा नहीं करते. So we always keep ourselves away from that word which speaks about idolatry. In fact, the Bible में जब आप पढ़ते हो, Bible very clearly says that God doesn't like idolatry, या फिर परमेश्वर को मूर्ति पूजा से प्रत्येक ही बहुत नफरत है. In fact, पुराने नियम में ओल्ड टेस्टमेंट में we will see God's anger, या फिर परमेश्वर का wrath आते लोगों पर, या फिर परमेश्वर का गुस्सा लोगों पर आए जब भी they were involved in idolatry. So that's the term or that's the topic for today evening's devotion. आप लोग सोचेंगे कि why is pastor speaking to us about idolatry? Why I'm speaking to you is you and I, we are believers. आज हम सभी लोग विश्वासी हैं. शायद हम एक मूर्ति पूजा नहीं करते, लेकिन the Bible says somewhere or the other you and I, we get involved in this thing called as idolatry. वही विषय मैं आपके सामने ले आऊंगा. अगर हम उसमें इन्वॉल्व है तो today we need to come before the Lord. आज अब परमेश्वर के पास आना है और परमेश्वर से कहना, प्रभु मेरे जिंदगी में अगर इस तरह का मूर्ति पूजा हो रहा था तो आज से मुझे उसमें एक बदलाव आना या फिर मुझे चेंज आना है. What am I speaking? एक वचन को लेंगे, हम आगे बढ़ेंगे. एजेकियल चैप्टर 14 वर्सेस 1, 2 and 3. पुराने नियम में एजेकियल का किताब उसका 14 अध्याय उसका पहला से लेकर तीसरा तक का वचन. वहां पर क्या लिखता है, इंग्लिश में मैं पढ़ूंगा. The second verse, first and the second verse. And the word of the Lord came to me saying, Son of man, these men have set their idols in their hearts and put before them what which causes them to stumble into iniquity. Should I let myself be inquired of all of them? और उसी विषय को आप आगे जाओगे when you read the 4th verse, the 5th verse. In fact, in that chapter itself, several times परमेश्वर का वचन कहता है, these men have set idols in their heart. Idols in their heart, या फिर उसमें हिंदी में ऐसा हम पढ़ेंगे कि इन लोगों ने या फिर ऐसे लोग वहां पर पाए गए जिन्होंने मूर्ति को अपने हृदय में रखा. What is God speaking about here? Which idolatry के बारे में? यहाँ पर idolatry के बारे में ही कह रहा है, क्योंकि जब आप उस वचन 14 अध्याय का ऊपर का जो टॉपिक पढ़ोगे, it speaks about idolatry will be punished. My Bible में वहाँ पर NKJV में it says that the topic is idolatry will be punished. And यहाँ पर परमेश्वर कहता है these men, कुछ लोगों के बारे में कहता है, ये लोगों के हृदय के अंदर क्या था, मूर्ति था. What is he saying? Is he talking about an idol worship? Not at all. यहाँ पर जो परमेश्वर आइडोलेट्री के बारे में कहता है या फिर एजेकियल के द्वारा वहां पर कहता है,
इट इज नॉट एक बाहरी मूर्ति का पूजा के बारे में नहीं कहता। इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट कीपिंग अ मूर्ति इन आवर हाउस, या फिर हमारे घर में एक मूर्ति है या फिर एक मंदिर में मूर्ति, वहां पर कोई जाकर सिर को झुकाकर वहां पर आराधना करने वाली बातों के बारे में नहीं लिखा है। इट इज नॉट, डेफिनेटली दैट इज रॉन्ग, वो सही नहीं है। परमेश्वर के वचन के अनुसार वी शुड नॉट हैव एनी आइडल्स, नो आइडल्स आउटसाइड, या फिर हम कोई भी बनाए हुए विषय, बनाए हुए व्यक्ति, बनाए हुए चीजों का हम आराधना कतई नहीं करना चाहिए। ये परमेश्वर का वचन है। हमने उन सारे चीजों को हमने छोड़ दिया है कि नहीं? अगर हमारे जिंदगी में देखेंगे, देयर आर मेनी ऑफ यू हु वेर इन्वॉल्व्ड इन आइडल वर्शिप years back, परमेश्वर में आने से पहले आप इन्वॉल्व थे, लेकिन हमने उन सारे विषय को छोड़ दिया, क्योंकि वचन कहता है यू शैल नॉट हैव एनी आइडल्स। तो आज हमें बाहर तो कोई मूर्ति नहीं है, हम कोई मूर्ति का पूजा नहीं करते, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर कहता है दिस इज स्पीकिंग अबाउट यू एंड मी। यहाँ पर जो वचन कहता है परमेश्वर के लोगों के बारे में या फिर इजराइल के बारे में, परमेश्वर वहां पर कहता है कई लोग हैं उन्होंने बाहर का मूर्ति पूजा तो बंद कर दिया, लेकिन they have set idols in their heart, या फिर इनके हृदय के अंदर क्या है? मूर्ति पूजा हो रहा है, या फिर हमारे हृदय के अंदर मूर्तियां हैं। यहाँ पर ये वचन कहता है एंड गॉड सेज आई एम अगेंस्ट इट। परमेश्वर कहता है मैं इसे स्वीकार नहीं करता। हालेलुया। हम देखेंगे व्हाट आइडल इज गॉड स्पीकिंग अबाउट, या फिर वचन के अनुसार ये जो हृदय में होने वाले आइडल्स ये क्या है। दो चीजों को मैं आपके सामने लाऊंगा वचन के आधार पर। बाइबल सेज what are these idols in our hearts? If you and I have it in our life, अगर हमारे जिंदगी में अगर इस प्रकार के अगर कोई मूर्ति या फिर idolatry है, तो today we need to get rid of it. We need to say, God, I want these idols of my life. Hallelujah. Come on. What are these speaking about? The first one. पहला सैमुएल उसका 15वां अध्याय उसका 23वां वचन, पुराने नियम में चल First Samuel chapter 15 verses 23. वहां पर जब आप पढ़ोगे you will know that First Samuel chapter 15 verses 23 वहां पर कहता है for rebellion is as the sin of witchcraft and stubbornness is as iniquity and idolatry. या फिर वहां पर हम पढ़ते हैं ये जो हृदय का जो मैंने कहा हृदय में होने वाला आइडल, one of them is stubbornness. English में you call it stubbornness. हिंदी में हम उसे कहते हैं जिद्द करना. That is what जिद्दी is stubbornness. And according to the Bible, यहाँ पर शमूएल की किताब में वहां पर वचन कहता है stubbornness is equivalent to idolatry. Oh, stubbornness. ये जो वाक्य है जिद्दी या फिर stubbornness, ये हम कई बार हम सुनते हैं. What is stubbornness? Few things that I found from Google या फिर वहां पर मैंने जो मीनिंग पढ़ा. What is stubbornness? Stubbornness is hard, it is tough, it is stiff neck, या फिर जिसका नेक कैसा पूरी तरह से स्टिफ है, वो उधर इधर ऐसे हिलता नहीं, वो पूरी तरह से. A stone or wood, difficult to shape or work on. Come on, that is stubbornness. Stubbornness, जिद्दी के बारे में वहां पर पढ़ते हैं. What is जिद्दी क्या है? ऐसे लोग जिनका जो पत्थर के समान है या फिर जो एक लकड़े के समान है, जिसे आप कोई शेप नहीं दे सकते, या फिर वो इतना कठोर है कि you cannot work on it. आप उस पर कोई भी कार्य नहीं कर सकते. That is stubbornness. And the Bible says stubbornness is idolatry. I don't know, have you read this before? But Bible says, this Bible वचन कहता है stubbornness is idolatry. मैं इसे थोड़ा और आगे आपके लिए पढ़ूंगा. यहाँ पर again I found something else in Google. It says a person who is determined to do what he or she wants and refuses to do anything else. ऐसा व्यक्ति stubborn है.
जो अपना मन का ही चीज करेंगे, उनको जो लगता है वही करेंगे। शायद वो सही होगा, वो गलत होगा, लेकिन वो और किसी का भी बातों पर ध्यान नहीं देंगे। They will only do what they want to do. That is stubbornness. According to the Bible, you know what is stubbornness? जब हम उस विषय में आएंगे, when we come to the same chapter, सैमुएल का उसी विषय में हम पढ़ते हैं, किसके बारे में वहां पर कहता है stubbornness? It's speaking about Saul the king. सॉल के बारे में वहां पर कहता है। उस वचन में जब आप पढ़ते हो, you will know that Saul did something wrong in the sight of God. आप उस पूरे चैप्टर में आप जब पढ़ोगे, सैमुएल जो परमेश्वर का प्रॉफिट है, he is coming and he is speaking to Saul the king. और सॉल से परमेश्वर के द्वारा सैमुएल कहता है कि सॉल तुम कुछ नहीं थे, आप कुछ नहीं था। आप जब when you read that 17th of those Samuel said, when you were little in your own eyes, you were not head of the tribes of Israel. Did not God chose you and anoint you and make you the king? जब सॉल कुछ नहीं था, वो कोई गोत्र का लीडर नहीं था, लेकिन उस समय में जब वो कुछ नहीं था, परमेश्वर ने उसे अनॉइंट किया, परमेश्वर ने उसे अभिषेक किया और परमेश्वर ने उसे क्या बनाया? उसे राजा बनाया इजराइल के ऊपर। और वो परमेश्वर के राह पर चल रहा था। लेकिन इस विषय में हम पढ़ते, God sends him for a mission, या फिर परमेश्वर उसे ऐसे एक जगह पर भेजता है, या फिर अमेलेकाइट्स के वहां पर भेजता है। And God commands them, you will go and destroy their entire Amalekites, और उनके हर एक चीजों को तुम क्या करोगे? तुम उससे नाश करोगे। वहां पर उन्होंने परमेश्वर का वचन का पालन किया, थोड़ा सा, पूरी तरह से नहीं, थोड़ा सा पालन किया। कैसे पालन किया? He went with his people, they attacked the Amalekites, उन्होंने वहां पर उनको डिस्ट्रॉय किया, लेकिन उन्होंने पूरी तरह से नाश नहीं किया, परंतु उन्होंने क्या किया? He allowed his people, या फिर Saul the king, उन्होंने अलाउ किया कि जो लोग उनके साथ वहां पर गए थे, उन्होंने उस राज्य का या फिर अमेलेकाइट्स का, उनके राज्य का अच्छे what is it speaks about the 21st, but the people took of the plunder, sheep and oxen, the best of the things. वहां पर जो अच्छे गाय थे या फिर वहां के अच्छे शीप थे, इन सारे चीजों को God said you will not bring anything, you will destroy everything. लेकिन वहां पर सॉल और उनके लोगों ने क्या किया? वहां के जो अच्छे चीजें उन्हें पसंद आया, उसे वो वहां से लेके आ गए, और परमेश्वर को ये पसंद नहीं आया। That is why when you read, आगे जाके जब आप पढ़ते हो, God is speaking through Samuel. सैमुएल के द्वारा परमेश्वर सॉल से कहता है, because you were stubborn, तुमने मेरे बातों को नहीं सुना, मेरा आज्ञा का पालन नहीं किया, परंतु तुमने किसके काम किए? जो तुम्हें चाहिए था और जो लोगों का मन का चीज था, वो तुमने किया। According to the Bible, what is stubbornness? When we do not obey God, when we do not obey God's word, when we do not trust in God's promises, when we cannot believe in Him, when we cannot walk in His ways, the Bible says we are stubborn. Yes, we are stubborn. हम जिद्दी है। कई बार हम परमेश्वर का आज्ञा का पालन नहीं कर पाते। Sometimes we are not able to, unknowingly. लेकिन कई बार we knowingly we do not follow what God tells us. अगर हमारे जिंदगी में अगर ऐसे विषय जहां पर we are not following God, we know this is wrong, we know this is not what I should do, we know what the Bible says, वचन क्या कहता है, उस वचन को मैं जानता हूं, लेकिन मैं अगर उसका पालन नहीं करता, वचन कहता है we are being stubborn in the presence of God. In fact, परमेश्वर से किसका दर्जा देते? God will say, you have idols in your heart. या फिर मेरे हृदय के अंदर क्या है? Idols है, मूर्ति है। अगर मैं stubborn हूं, अगर मैं जिद्दी हूं परमेश्वर के पास। There are many people like that, isn't it? आज हम लोग कई लोग, अगर एक अभी पत्थर को ले लो, उस पत्थर को you cannot give a shape to it.
आप उसे मोल्ड नहीं कर सकते, आप उसे बेंड नहीं कर सकते, आप उस पर कुछ भी नहीं करते, क्योंकि वो पत्थर है या फिर वो एक लकड़ा है, इट इज स्टिफ। ऐसा है, कई लोग हैं इस तरह से परमेश्वर में तो आते हैं, उद्धार तो पाते हैं, लेकिन दे डू नॉट वांट चेंज इन देयर लाइफ। They want to be जिद्दी, वो पूरी तरह से जिद्दी है, जो मैं सोचूं ऐसा ही हो। परमेश्वर का वचन कहते बेटा नहीं, ऐसा नहीं करना। Believe in God, trust in God, oh move in His promise, walk in His ways। लेकिन जिद्दी है। The Bible says you and I are called to be clay। हमें परमेश्वर ने एक clay होने के लिए कहा। God is the potter and we are the clay। क्ले का मतलब क्या है? परमेश्वर जो कुम्हार है वो उसे अलग 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 शेप दे सकते हैं, लेकिन अगर हम जिद्दी है, अगर हम स्टबर्न है, God can never do anything in our lives। Idolatry, do we have that idol in our heart? हमारे हृदय में है क्या इस तरह का आइडल्स, इस तरह का मूर्ति? अगर है तो आज प्रभु से कहना, प्रभु तू मुझे माफ कर। अगर इस तरह का अगर आइडल मेरे मन में है, अगर स्टबर्ननेस है, तो वो आज तक अगर मैं स्टबर्न रहा, मैं जिद्दी रहा, तो आज मुझे तू माफ कर। चेंज मी लॉर्ड, चेंज माय हार्ट लॉर्ड, एंड आई एम टेलिंग यू God will do that for us। Hallelujah। So stubbornness is idolatry in heart, या फिर हृदय के अंदर मूर्ति होना। उसका मतलब क्या है? You being या फिर we being stubborn in the presence of God। Stubbornness is pushing back from following God's commandments। Oh, stubbornness, जिद्दी का मतलब परमेश्वर के वचन के अनुसार pushing back। God is telling you to do something, but you're just pushing it। आप उसे धक्का दे रहे हो, बोले कि नहीं प्रभु, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं। Every day we are pushing, we say no, I cannot do this। God is telling you to do something, we're just pushing it। That's being stubborn। Don't be stubborn। Trust in God and obey His word। यीशु मसीह ने क्या कहा यूहन्ना का 15 अध्याय में? If you claim to love me, अगर तुम मुझसे प्रेम रखते हो, what you will do? You will obey my word। अगर हम परमेश्वर से सही तरह से प्रेम रखते हैं, तो what are we going to do? We're going to obey God's word। Hallelujah। Praise the Lord। Let's not be stubborn in the presence of God। एक और चीज, what is idols in our heart? पहला है stubbornness। दूसरा, Colossians chapter 3 verses 5। कोलोसी की किताब उसका 3रा अध्याय उसका 5वां वचन, और Ephesians chapter 5 verses 5। इन दोनों वचनों में पौलुस कहता है, न्यू टेस्टमेंट में, इट्स नॉट इन द ओल्ड टेस्टमेंट, न्यू टेस्टमेंट में, व्हाट इज हैविंग आइडल्स इन योर हार्ट। वहां पर पौलुस कहता है, इफ यू आर ग्रीडी, अगर हम ग्रीडी है, उसका हिंदी का मतलब है लोभ, covetousness। इंग्लिश में another word is covetousness। डिफरेंट ट्रांसलेशंस में, कई ट्रांसलेशंस में ग्रीडी कहते हैं, कुछ ट्रांसलेशन में covetousness कहते हैं। उसका मतलब यह है कि लोभ या फिर कुछ चीजों को और पाना, कभी भी संतुष्ट नहीं रहना। That's the right word। What does greedy means? यहाँ पर greedy क्या है? Let me just read that verse before we move into it। Ephesians chapter 5 verses 5। वहां पर क्या कहता है? Okay, that no fornicator, unclean person, nor covetous man, वहां पर कहता है, who is an idolater has any inheritance in the kingdom of Christ and God। वहां पर पौलुस कहता है, fornicator, unclean person, इस विषय को हम जानते हैं, हम ये नहीं है, लेकिन it says nor greedy man। And greedy man, what does it mean? An idolater। वहां पर कहता है, if you and I we are greedy, we are idolatry, या फिर हम मूर्ति पूजा में involved है। That is what the Bible says। Hallelujah। एक और वचन Colossians chapter 3 verses 5। वहां पर it says, therefore put to death your member which are on the earth, fornications, uncleanness, passion, evil desires, and covetousness, greediness, which is idolatry। Again वहां पर पौलुस कहता है, अगर हम greedy है कोई विषय में, अगर हम greedy है, then the Bible says we are having idols inside our heart। एजेकिएल में जो परमेश्वर कहता है, I see men who have idols, they have set idols in their heart। They are the ones who are stubborn,
वो पुशिंग गॉड्स वर्ड या फिर परमेश्वर का वचन का पालन नहीं करते। दूसरा है इफ यू एंड आई आर ग्रीडी। व्हाट इज ग्रीडी? ग्रीडी का कुछ चीजें मैंने गूगल से पढ़ा, वहां पर इट सेज अ वेरी स्ट्रॉन्ग विश टू कंटिन्यूअसली गेट मोर ऑफ समथिंग, especially food or money or power. That is greedy according to Google. Google के उसमें मीनिंग में कहता है एक व्यक्ति में अगर कंटिन्यूस फिर से और चाहिए और चाहिए और चाहिए, जितना भी पैसा मिले नहीं थोड़ा और चाहिए, पावर मिले थोड़ा और चाहिए, खाना मिले थोड़ा और चाहिए, हर विषय में उन्हें कभी भी क्या नहीं है, संतुष्टि नहीं है। That's being greedy. सेल्फिश डिजायर फॉर समथिंग। वहां पर एक और चीज मैंने पढ़ा, सेल्फिश डिजायर फॉर समथिंग व्हिच मींस वी आर नेवर थिंकिंग अबाउट अदर्स। कई लोग हैं ऐसा, वो जिधर भी जाएंगे दे विल नेवर थिंक अबाउट वहां पर कोई है क्या। कई लोगों को मैंने देखा वैसा, दे विल नेवर थिंक क्या और किसी को कुछ जरूरत है, क्या इन्हें कुछ जरूरत है, नहीं, वो सिर्फ अपना जरूरत को देखेंगे। वो सिर्फ देखें मैं भूखा हूं, मुझे जरूरत है, मुझे कुछ चाहिए। दे आर नेवर कंसर्न्ड अबाउट द एनवायरनमेंट, दे नेवर कंसर्न्ड अबाउट पीपल अराउंड देम, व्हिच मींस दे आर सेल्फिश। सिर्फ अपना पेट, सिर्फ अपना चीज, सिर्फ अपने बारे में सोचता है। वचन कहता है दे आर covetous people या फिर they are greedy, and the Bible gives them the दर्जा देता है of idolatry या फिर having idols inside their heart. People who want something that belongs to others. ऐसा भी है कि नहीं? दूसरे का घर देखा, दूसरे का गाड़ी देखा, दूसरे का लाइफ देखा, दूसरे के जिंदगी में कोई अच्छा जॉब देखा, उनका कुछ सुख देखा, we just feel come on, वो मुझे चाहिए, ओ उसको देखो ये मुझे चाहिए, ओ उसके पास पैसा, मुझे पैसा चाहिए। I'm not thinking about how did they get it, या फिर ये कैसा हुआ, या फिर रुकने के लिए समय परमेश्वर में रुको। प्रभु गॉड सेज वेट अपॉन मी, मुझ पर विश्वास करो, मुझ में तुम आशा रखो, तुम मुझ में इंतजार करो। A time will come and I will fulfill your heart's desire. That's God's word for you and me. परमेश्वर कहता है बेटा तू मुझसे मांग, मैं तुझे दूंगा, लेकिन वेट। But many a times हम लोग विश्वासी तो है, हम लोग पास्टर्स तो है, we are faithful believers, लेकिन many times unknowingly we become selfish. God says if you and I we are greedy, पौलुस यहाँ पर कहता है then that's idolatry. That's having setting up idols. हमारे हृदय में मूर्ति को रखने के समान है। और वचन कहता है God hates idolatry. God doesn't accept it at all. अगर हमारे जिंदगी में हम definitely we don't have any idols in our homes. हमारे जिंदगी में कोई idols नहीं है, हम कोई idol, कोई मूर्ति के सामने हम आराधना नहीं करते। We don't do all that because the Bible says you shall not have any other God but me alone. That's what Bible says. 10 commandments में, पुराने नियम में, even in the New Testament, God says He hates idolatry. लेकिन कई बार हम भूल जाते हैं कि हमारे अंदर भी कई बार इस प्रकार का मूर्तियां होता है। अगर हमारे हृदय में ऐसे मूर्ति है तो today we need to get rid of it. Tell God, I want to come out of that idolatry. I do not want to be counted as somebody who has set idols inside my heart. Because वहां पर Ezekiel में when you read it again and again and again, God is speaking to the people. Oh, you have set idols. तुम्हारे हृदय में तुमने मूर्तियों को रखा है, तुम्हारे हृदय में they have set idols up. And God says, I will not accept it. Oh, come on. God doesn't like idolatry. अगर हमारे जिंदगी में भी अगर जिद्दी है, प्रभु का वचन का पालन नहीं करते, God is telling us again and again what we need to do. God is commanding us. Oh, do not be worried. Anxiety नहीं होना चाहिए. Believe in my promise. Believe in my protection. Believe in my healing. हमें कई बार वचन परमेश्वर ने हमें दिया है। परमेश्वर हमारे हृदय से बात करते, परमेश्वर हमें विजन्स देते, परमेश्वर हमसे हमारे कानों से बात करते।
God speaks to us, but many times we are so सिद्धि, हम लोग कितने stubborn हो जाते कि we just shut our ears to the voice of God. That's dangerous, my dear people. वो हमारे क्रिस्ती जिंदगी में, हमारे स्पिरिचुअल जर्नी में वो एक बहुत बड़ा खतरा है। हम लोग देखें ना, कई जगहों पर खतरा है तो ऐसा एक क्रॉस होता है, जैसे क्रॉस आ जाता है। इसी प्रकार से अगर हमारे जिंदगी में स्टबर्ननेस है, if we are pushing back on obeying God's word, अगर परमेश्वर का वचन पालन नहीं करते हुए we are pushing it, then that stubbornness, don't do it. सॉल ने किया हो। What did Saul do? Saul, हम वहां पर हम पढ़ते हैं, सॉल ने परमेश्वर का वचन का पालन आधा किया, या he went on a mission, he destroyed the Amalekites, वो सब किया। लेकिन एक चीज परमेश्वर ने कहा था कि don't bring anything from there, लेकिन his people wanted to bring things from there। वहां से उसके लोगों ने अच्छे चीजों को देखा, अच्छे फल को देखा, अच्छे चीजों को देखा, तो उसने उनके मन में लगा कि चलो हम इसे लेकर हमारे देश में ले आए। और सॉल ने परमेश्वर का वचन का पालन नहीं करते हुए he allowed them to bring it, and God says that is idolatry. You did not obey me. If we are not obeying God, God might tell us, परमेश्वर हमसे कहेंगे बेटा तेरे मन के अंदर तूने आइडल्स को रखा हुआ है, निकाल दो आज, निकाल दो उस stubbornness को, उस जिद्दी को निकाल दो। और परमेश्वर के सामने हम समर्पित करेंगे, बोलेंगे गॉड हालेलुया, I come to you. I am the clay, you are the potter. मैं मिट्टी हूँ, तू कुम्हार है। ओ तू मुझे बना ले प्रभु, तू मोड़ कर बना, जैसे तू चाहता है उस तरह से मुझे बना ले। हालेलुया। सेकंड, greedy. Don't be greedy about anything. Whatever it is, my God says He will supply. He will give it to us. परमेश्वर कहता है तेरा रोज का जरूरत का हर एक चीज है मेरा प्रभु का प्रॉमिस है, He will bring to me. प्रभु पैसा, God will give us good prosperity, God will give us a good life, God will give me a promotion, my God will bring me a, I don't need to look at somebody else's house. नहीं, मुझे और किसी का घर को नहीं देखना है, मुझे और किसी का गाड़ी नहीं देखना है, और किसी का जॉब नहीं देखना, मुझे किसी से कोई भी चीजें चुराना नहीं। I don't need to rob anything from anywhere. No, my God, I belong to my Father. मैं उस परमेश्वर का संतान हूँ, and at the perfect time, my God will bless me with everything that I desire in my heart. That's the promise of God, my dear children. वो परमेश्वर का वचन है हमारे लिए। तुम जो मांगोगे, तुम जो विश्वास करोगे, परमेश्वर हमें देगा। Then why be selfish? Never be selfish. ओ सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना, सिर्फ अपने परिवार के बारे में नहीं सोचना। Think about others too, because God doesn't accept ones who are greedy. Don't be greedy, because being greedy या फिर उस लोभ में होना, वो भी क्या है? मनों के अंदर मूर्तियों को रखना। इन दोनों विषय आज हमारे जिंदगी में है तो निकाल दीजिए। रिमूव इट टुडे, आज उसे निकाल दीजिए। वो कल के लिए मत रखो, आज इसी शाम को, आज इस गुरुवार के दिन, इस शाम को आप उस विषय को निकाल दीजिए। बोलेंगे प्रभु आज शाम को इसे तो निकाल। रिमूव इट फ्रॉम माई हार्ट, क्लियर माई हार्ट लॉर्ड, एंड माई गॉड विल बी well pleased with our life. That's idolatry. Hallelujah. अगर हमारे जिंदगी में है तो today is the end of that idolatry in our life. Don't set idols in our life because God never accepts it. आइए हमारे आंखों को बंद करके हम प्रार्थना करें। हे हमारे परमपिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस अच्छे से शाम के समय के लिए। प्रभु इस हफ्ते के हर एक दिन प्रभु आपने हमें चलाया, पिछले हर एक महीनों में प्रभु आपने हमें चलाया। आपकी कृपा, आपकी दया, आपका प्रेम, आपका मर्सी, आपका फेथफुलनेस हमारे जिंदगी में है। इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते प्रभु। खास करके आज जो वचन के आपने हमें सुनाया प्रभु, उस वचन के आधार पर प्रभु हमारे हृदयों को आपके सामने हम लाते प्रभु। प्रभु हम शायद हमारे घरों में कोई मूर्तियां नहीं, हम कोई मूर्ति के सामने सिर नहीं झुकाते, लेकिन अगर हमारे हृदय में कोई मूर्तियां है, जैसे एजेकियल में परमेश्वर आपने कहा, oh they have set idols in their heart. My God, if you find any idols in our heart, if we have set idols in our heart of stubbornness and of covetousness or greedy, Lord, I pray that tonight you will remove it. आज प्रभु हमारे हृदयों को तू
शुद्ध कर दे, हमारे हृदय को तू चंगा कर प्रभु, हमारे हृदय से सारे उस मूर्तियों को तू बाहर कर दे प्रभु, और तेरी नाम की महिमा हमारे जिंदगी में आने दो प्रभु। लॉर्ड, डू नॉट लेट अस बी सेल्फिश एवर प्रभु, परंतु हम ऐसे लोग बने जो प्रभु तुझ पर भरोसा करे, तेरा वचनों का पालन करे, वो तेरा आज्ञाओं का पालन करते हुए आगे बढ़े और तुझसे प्रेम रखे प्रभु, और ऐसे लोग बने जो तेरे पे भरोसा रखते हुए तेरे समय के लिए हम रुके, so that you can bless us Lord. Hallelujah, at your perfect time. Lord, I submit myself. मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ प्रभु। प्रभु, हमारे हर एक लोग जो आज मुझे देख रहे हैं, सभी को तेरे हाथों में समर्पित कर दे प्रभु। अगर हमारे जिंदगी में इस तरह का अगर आइडोलेट्री रहा आज तक, तो आज इसी समय में मेरा परमेश्वर तू उसे बाहर कर दे, आज तू चंगा कर दे, आज तेरी महिमा हमारे जिंदगी में पूरी तरह से होने दो प्रभु। May your glory be revealed in our life, Lord. प्रभु, प्रार्थना दे तेरा महिमा, तेरा ग्लोरी, तेरा प्रकाश हमारे जिंदगी से बाहर आने दो प्रभु, लोग देखने दो प्रभु, हमारे परिवार देखने दो प्रभु, और तेरी नाम की महिमा हमारे जिंदगी के द्वारा बनने दो प्रभु। आज शाम को इस ऑनलाइन सभा में जुड़े हुए सबों के लिए धन्यवाद करते हैं, सब पर तेरी कृपा, सब पर तेरी आशीष, सब पर तेरी अनुग्रह रहे, ऐसा मांगते। God, I bless your people in your precious name. We thank you God that you spoke to our heart. Help us to believe in that word, help us to accept that word, help us to receive that word, and help us to follow your word in the days to come. Give us a blessed weekend. प्रभु, हमें एक अच्छा वीकेंड तो दे दे प्रभु, और संडे को, रविवार को फिर से हम एक साथ तेरी ऑनलाइन सभा में तेरी महिमा के लिए तो हमें तैयार कर प्रभु। हमारे कलीसिया में अगर कोई बीमार है, इसी समय में तेरे चंगाई को तू भेज। But if there's anyone who's sick in their body, right now I speak your healing over them, Father. Every kind of pain, every kind of sickness, every kind of distress, in Jesus' name I rebuke it right now. May your name be glorified. Lord, thank you God for your protection over all our lives, Father God. We give all glory, all honor, all praises to you and you alone. Lord, at this time, we want to pray for our city, we want to pray for our country, हमारे देश के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु, एक बदलावट को तू दे आ प्रभु, इस कोरोना वायरस को पूरी तरह से तू अंत कर दे प्रभु, because that's your will that your people will be healed, that our land will be healed, and we pray, oh God, that you will bring that healing very soon, and we will be able to come back to our normal life, Lord. We give all glory, all honor, and all praise to you, Lord. We thank you, God, that you heard our prayers. In Jesus' mighty name, we make this prayer. And all God's people say, Amen, Amen, and Amen. Hallelujah. मैं विश्वास करता हूँ आज का ये जो वचन मेरे हृदय से प्रभु ने बात किया, और ये विषय मैं लास्ट संडे के हमारे प्रचार में मैं बोलने वाला था, लेकिन समय नहीं था, इसलिए मैंने सोचा I will speak in devotion. I hope that this word has been a blessing to all of us. Don't have idolatry in our lives. Don't have any idols. हमारे हृदय में कोई भी प्रकार का मूर्ति कभी नहीं हो. May the Lord continue to bless you all. We hope to see you all soon. Till we meet again, stay home, stay safe. God bless.